this exercise twice B, Roman 2, example number 3. The sum of three numbers is 6. Simplest of all examples. Let the numbers be x, y, z. Let the numbers be x, y, z. फिर पहली कंडीशन क्या दी है? The sum of three numbers is x 6. यानी x plus y plus z is equal to 6 हो गया पहली कंडीशन. हाँ. If we multiply the third number by 3, यानी 3z, and add to the second number, we get 11. Second number कौन रहता है? y. यानी क्या दिया? 3z plus y is equal to 11. That means y plus 3z is equal to 11. Next, by adding the first and third numbers, by adding the first and third number, यानी कौन? x plus z. Very good. We get a number which is double the second number, यानी x plus z is equal to 2y. Then x minus 2y plus z is equal to 0. क्या बात है? हाँ. We get a number which is double the second number. Use this information and find the system of linear equations. Find these three numbers using matrices. Answer. Let the three numbers be x, y and z. X, y and z be the three numbers. According to the given conditions, अब एक एक देखते हैं पहले. The sum of three numbers is 6. Numbers क्या लिए है अपन ने? x, y और z. Sum of numbers कितना दिया? 6. What is the condition? x plus y plus z is equal to 6. x plus y plus z is equal to 6. Second condition देखते हैं. If we multiply the third number by 3, यानी 3z, and add to the second number, यानी y, we get 11. देखो इधर देखो, 3z plus y is equal to 11. If we multiply the third number by 3 and add it to the second number, we get 11. That is the language. We converted in the mathematical language, 3z plus y is equal to 11. बट हायरार्की में अगर देखेंगे तो पहले z चाहिए कि पहले y चाहिए? पहले y चाहिए. तो y plus 3z is equal to 11. सेकंड कंडीशन क्लियर. थर्ड कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट है. By adding first and third numbers, यानी x plus z, we get a number which is double the second number. यानी x plus, I repeat, x plus z is equal to 2y. By adding the first and third number, we get a number which is double the second number. So क्या दिया उन्होंने? x plus z is equal to 2y. That is x minus 2y plus z is equal to 0. Therefore, the system of linear equations is x plus y plus z is equal to 6, y plus 3z is equal to 11, x minus 2y plus z is equal to 0. Okay? Now we have to solve using matrices. तो उसकी लैंग्वेज आती है. These equations can be written in the matrix form. Capital X is equal to B as. Okay? These equations can be written in the matrix form. Capital X is equal to B as. ये इसके कोएफिशिएंट्स देखो भी. A यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 पहली रो होगी. X की टर्म नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0 है. 0 1 3 0 1 3 1 minus 2 1 1 minus 2 1. Then the variable matrix capital X, यानी x y z is equal to right hand matrix B यानी कांस्टेंट का मैट्रिक्स. इधर देखो 6 11 0 6 11 0. Now we did not convert this coefficient matrix into I. We just need to convert this into an upper triangular matrix या bring 3 zeros anywhere. एक जीरो एक रो में और 2 जीरो किसी और रो में सफिशिएंट है. अब अपना रूल है टू कन्वर्ट दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यानी मुझे यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए. यहाँ 0 चाहिए यूजिंग दिस वन, यानी R3 में 0 चाहिए. तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, R3 changes to R3 minus R1. वेरी गुड वेरी गुड. R3 changes to R3 minus R1. किस में चेंजेस कर रहे हैं अपन? R3. वेरी गुड.
तो अपन पहली रो 1 1 1 0 1 3 लिख दिया। अभी 1 माइनस 1, मजा आ गया, -2 -1 -3, 1 माइनस 1 x y z, 6 11 वैसी रहेगी। अब R3 minus R1 means 0 minus 6, answer is -6. Now is there any need to convert this -3 into 0? No, because ये रो में 2 0 आएगा और यहाँ पे एक 0 आ गया, sufficient है मेरे लिए कैलकुलेशन के लिए। Now I multiply these two matrices, first row first column. How we multiply? First row first column. तो ये गया 1 into x plus 1 into y plus 1 into z, x plus y plus z. Now second row first column, 0 into x 0, 1 into y y plus 3 into z, 0 plus y plus 3z, 0 minus 3y plus 0, 0 minus 3y plus 0, 6 11 minus 6. Now these two matrices are equal, their corresponding elements are equal, therefore x plus y plus z is equal to 6, equation 1, by equality of matrices. X plus y plus z is equal to 6, y plus 3z is equal to 11 and minus 3y is equal to minus 6, therefore यहाँ से from equation 3 y is equal to minus 6 by minus 3 and y is equal to 2. Now I put y is equal to 2. Third equation से कौन मिल गया मेरे को? Y is equal to 2. I put this value in equation 2. We get 2 plus 3z is equal to 11. 3z is equal to 11 minus 2. 11 minus 2 is 9. 3z is equal to 9. Z is equal to 3. 2 plus 3z is equal to 11. 3z is equal to 11 minus 2 is 9. 3z is equal to 9 by 3. Answer is z is equal to 3. अब ये वैल्यू जो है y is equal to 2 और z is equal to 3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे अपन। तो we get x plus 2 plus 3 is equal to 6, x plus 2 plus 3 is equal to 6, यानी x plus 5 is equal to 6, that means x is equal to 6 minus 5, x is equal to 1 and therefore the required three numbers are x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. 1 minute. Now, don't rely on your skills that whatever I done must be correct. No, sometimes it may be wrong also. So check it. भाई 4 मार्क का सवाल है, चेक करने को 10 सेकंड भी नहीं लगते अपने को. चेक इट. हाँ याद रखो, 1 है 2 है 3 है, x1 y2 z3, एक बार याद रखना था, दोबारा देखने का नहीं फिर उसके बाद. अब पहला सिस्टम 1 plus 2 plus 3 6 is equal to 6 सेटिस्फाई किया. 2 plus 9 plus 2 11 सेटिस्फाई किया. 1 minus 2 2 4 plus 3 4 minus 4 is equal to 0 सेटिस्फाई किया. यानी अपन ने जो भी आंसर निकाला हुआ है बिल्कुल करेक्ट है. रिक्वायर्ड नंबर्स. नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्वाइस P Roman 2 एग्जांपल नंबर 4. The cost of 4 pencils, 3 pens and 2 books is rupees 150. The cost of 1 pencil, 2 pens and 3 books is rupees 125. The cost of 6 pencils, 2 pens and 3 books is rupees 175. Find the cost of each item by using matrices. अपना पहला सेंटेंस रहेगा, let the cost of 1 pencil, 1 pen and 1 book be rupee x, rupee y and rupee z respectively. I repeat, let the cost of 1 pencil, 1 pen and 1 book be rupee x, rupee y and rupee z respectively. According to the given conditions. अब ऑर्डर देखना, पेंसिल पेन और बुक तीनों में ध्यान रखना. ऑर्डर 4 पेंसिल्स यानी 4x रुपीज प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 150. फिर पेंसिल पेन और बुक है यानी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 125. पेंसिल पेन बुक कंफर्म कर लिया, ऑर्डर कंफर्म किया. 6x plus 2y plus 3z is equal to 175.
6x plus 2y plus 3z equal to 175. These equations can be written in the matrix form capital X is equal to B as, पहली रो क्या रहेगी, ये पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z रहेगा। तो पहली रो रहेगी 4, 3, 2, सेकंड रो रहेगी 1, 2, 3, थर्ड रो रहेगी 6, 2, 3, x, y, z वेरिएबल मैट्रिक्स। राइट साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स 150, 125, 175। सिंपल, नथिंग टू वरी यहाँ तक। ओके, नाउ आई कन्वर्ट दिस प्रीफैक्टर मैट्रिक्स ए इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कहाँ जीरो लाना है, मेरे को 3 जीरो लाना है। यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो। कितने जीरो लाना है? 0, 0, 0 लाना। तो यहाँ पे पहले 1 लाना पड़ेगा मेरे को, पहली स्टेप इनवर्स की, पहली स्टेप रो ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यहाँ 1 लाना है, तो मैं यहाँ देखूंगा कि 1 है क्या है, R2 में 1 है, तो जस्ट इंटरचेंज R1 एंड R2, ये ट्रिक है अपनी। तो R1 इंटरचेंजिंग R2 वी गेट, ये रहेगा 1, 2, 3, सेकंड रो रहेगी 4, 3, 2, थर्ड रो में चेंज, नो चेंज 6, 2, 3। एक्स वाई जेड में चेंज नहीं करना, याद रखो, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन में पोस्ट फैक्टर में चेंजेस नहीं करते हैं। तो आई रिपीट, R1 इंटरचेंजिंग R2 किया मैंने, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए। तो पहली रो रहेगी 1, 2, 3, सेकंड रहेगी 4, 3, 2, थर्ड रहेगी 6, 2, 3। सेम चेंजेस राइट साइड में करेंगे तो 125 ऊपर आएगा, 150 नीचे आएगा, और यहाँ रहेगा 175। हो गया, आगे यहाँ तक। अब ये 1 का यूज करके, ये 1 पोजीशन पे 1 आ गया, यानी स्टेप 1 हो गई अपनी। इसका यूज करके मेरे को 4 और 6 की जगह क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो मैं लिखूंगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6R1। एक ही जगह पे कर लो फिर से एक बार। ये 1 है ना, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4R1, यानी यहाँ 0 हो जाएगा। एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6R1, 6 माइनस 6 यहाँ पे 0 आएगा। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6R1। अभी पहली रो में कोई चेंज नहीं, तो पहली रो वैसे ही दिया अपने 1, 2, 3। अब यहाँ कैलकुलेशन करना चालू करो। R2 माइनस 4R1 है, क्या है? R2 माइनस, तो क्या करेंगे? 4 माइनस 4 इंटू 1 0, 3 माइनस 4 इंटू 2 3 माइनस 8 माइनस 5। देखो 2 माइनस 4 इंटू 3 2 माइनस 12 यानी माइनस 10। सेम चीजेस राइट साइड में 150 माइनस 4 इंटू 125, 150 माइनस 500 माइनस 350। Now, और डेंजरस कैलकुलेशन, R3 माइनस 6R1, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 12 माइनस 10, 2 माइनस 6 2 12 माइनस 3 माइनस 6 3 18, 3 माइनस 18 माइनस 15। एक्स वाई जेड वैसे रहेगा। अब यहाँ कैलकुलेशन सबसे डिफिकल्ट है अभी। 175, आई रिपीट 175 माइनस 125 इंटू 6, 125 इंटू 6 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 750। हो गया, यानी आंसर आने वाला माइनस करना है। लेकिन माइनस करते हुए अपन लोग यहाँ बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं, 750 माइनस 175। 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ 1 डाल दिया। 15 में से 8 गए, 7 बच गया, यहाँ 1 डाल दिया। 7 में से 2 गए, 5 बचा, यानी 575। बट सिंस बिगर संख्या का साइन माइनस था, बड़ी संख्या का, तो आंसर माइनस आएगा, इसलिए माइनस 575 इज द आंसर। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब ये 2 0 आ गए। अब मुझे कहाँ जीरो चाहिए, किसकी जगह? माइनस, बिल्कुल सही है, वेरी गुड अनामिका।
-10 पे 0 चाहिए, यानी R3 में 0 चाहिए, इसका यूज करके R2 का, तो R3 changes to R3 minus twice R2, so simple. R3 changes to R3 minus twice R2. पहली रो 1 2 3 वैसी रहेगी, 0 minus 5 minus 10 वैसा ही रहेगा. अब यहाँ पे आएगा 0 minus 0 0, minus 10 plus 10 0, minus 15 plus 25, x y z वैसी रहेगा, 125 minus 350 वैसी रहेगा. अब minus 575, I repeat, minus 575 plus 350 into 2, यानी 700 minus 575. 700 में से 575 में 25 ऐड किया तो 600 होता है, प्लस 100 यानी 700. तो ये हो गया 125 और वो प्लस आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है. सो आंसर इज 125. 700 minus 575, 125. 3 0 आ गया. नाउ इट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. 3 zeros के ऊपर इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 3 zeros के ऊपर इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसका नाम रहेगा. सो ये मल्टीप्लाई किया है, अभी 3 zeros के ऊपर है, मल्टीप्लाई करो x plus 2y plus 3z, पहली रो हो गई, x plus 2y plus 3z, यानी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, x plus 2y plus 3z. Then 0 into x 0, minus 5y minus 10z, minus 5y minus 10z. उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 plus 0 plus 5z, 0 plus 0 plus 5z. राइट साइड में 125 minus 350, 125. Now by the equality of matrices, x plus 2y plus 3z is equal to 125. Minus 5y minus 10z is equal to minus 350. This is equation 1, this is equation 2, this is equation 3, and 5z is equal to 125, equation 3. अब 5z is equal to 125 है तो z will be 125 divided by 5 and z comes out to be equal to 25. अब ये z की वैल्यू कहाँ डालेंगे? इक्वेशन 2 में. Put in equation 2 we get minus 5y minus 10 into 25 is equal to minus 350. Minus 5y is equal to minus 350 और ये plus 250, यानी हो गया minus 100. Minus 5y is equal to minus 100, therefore y is equal to minus 100 upon minus 5, यानी y is equal to 20. अब y is equal to 20 है और z is equal to 25 है, ये दो वैल्यू इक्वेशन 1 में डालना. तो ये आता है x plus 2 into 20 plus 3 into 25 is equal to 125. So x is equal to 125 minus 40 minus 75. ये minus 40 minus 75 is minus 115. 125 minus 115 यानी 10. So x is equal to 10, y is equal to 20 and z is equal to 25. इतना छुड़ा आपने यहीं पे रुक गए तो आपका 1 मार्क काट डालते बोर्ड वाले, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा एक्स वाई जेड क्या है, उन्होंने पूछा कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, ईच पेन एंड ईच बुक कितना था. तो एक्स कौन है? 1 पेंसिल. वाई कौन है? 1 पेन. जेड कौन है? 1 बुक. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹10, 1 पेन इज ₹20 and 1 book is ₹25. This should be the final answer. That's all, my friends. Miscellaneous exercise twice. B Roman 2 example number 7, very dangerous example. An amount of ₹5,000 is invested in 3 types of investments. अब उसको नाम उन्होंने दिए नहीं लेकिन अपन देंगे. इसने एक 5,000 में से कुछ अमाउंट SBI में इन्वेस्ट किया, फिक्स डिपॉजिट इन SBI. कुछ अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स. सही है, ओके. अब एट इंटरेस्ट रेट्स ऑफ 6%, 7%, 8%, he is getting investment return of 6% from FD in SBI, 7% from share market
and 8% for mutual funds he is getting the investment per annum. फिर मन में सवाल आता कि सर वाई टू इन्वेस्ट इन दिस, इसमें क्यों नहीं करेंगे अपन? तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड ये थोड़े से रिस्की एलिमेंट रहते हैं, तो एक ऐसी अमाउंट आपकी ऐसी होना चाहिए जो गारंटीड है, श्योर है, भले ही कम है लेकिन डूबेगे नहीं। वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के फिक्स डिपॉजिट्स। इसलिए आदमी ने हर एक जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर कंसेप्ट? ओके। FD का रेट कितना है? 6%। शेयर मार्केट से कितना रिटर्न मिल रहा है उसको? 7%। और म्यूचुअल फंड से कितना मिल रहा? 8% पर एनम रिस्पेक्टिवली। द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट्स इज ₹350, यानी तीनों का मिला के उसको 5000 पे एक साल में कितना पैसा वापस मिल रहा? प्रॉफिट मिल रहा ₹350 उसको एक साल में प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, हाँ। If the total annual income from first two investments, if the total annual income from first two investments is ₹70 more than the income from the third, then find the amount of each investment using matrix method. तो पहले तो वर्ड कॉलम को यहाँ तक कन्वर्ट करने में खतरा है, बाद में तो सिंपल है। तो लेट द अमाउंट्स इन 3 इन्वेस्टमेंट्स बी ₹X, ₹Y and ₹Z रिस्पेक्टिवली। अंदाजे समझ लो 1500, 1000, 1500 अंदाजे, ठीक है? ओके, 1500, 2000, 1500, 5000 या 1000, 1000, 3000, something like that, any amount that we have to find, so that profit इसका ज़्यादा रहेगा। Let the amounts in 3 investments be ₹X, ₹Y and ₹Z respectively. Then, how much total amount he is investing? ₹5000 in 3 schemes. Then X plus Y plus Z is equal to 5000. That is your first condition. I repeat, X plus Y plus Z is equal to 5000. That will be your first condition. Please bear with me because heavy raining is going outside, so थोड़ा सा उसका आवाज़ आप पे आ रहा है। ओके, सो मैं थोड़ा पास में आके बोलूँगा, आवाज़ थोड़ा कम आएगा, डिस्टर्बेंस रहेगा। आज के दिन bear with me because नागपुर is experiencing very heavy rainfall today. Now, पहली कंडीशन क्लियर हो गई, x plus y plus z is equal to 5000. I repeat, x plus y plus z is equal to 5000. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसके? 6%, 7%, 8% रिस्पेक्टिवली। एंड एनुअल इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट कितना है? 350। करेक्ट है टोटल। तो उसको पैसा कैसे मिलेगा? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ₹X, यानी 6 into X divided by 100, 7y upon 100, 8z upon 100 respectively. The annual income of the 3 investments are 6x by 100, 7y by 100, 8z by 100 respectively, but the annual income is given to be ₹350. The second condition is 6x plus 7y, sorry 6x upon 100, 7y upon 100, 8z upon 100 is equal to 350 because 6%, 7% and 8% दिया हुआ है। अब ये 100 इधर लेके गया मैं, तो ये होगा 6x plus 7y plus 8z is equal to 350 और 2 0 यानी 35,000। 6x plus 7y plus 8z is equal to 35,000। ठीक हो गया। Also, अब थर्ड कंडीशन देखते हुए भी क्या है? If the total income from the first 2 investments, यानी 6x upon 100 plus 7y upon 100 is ₹70 more than the income from the third. Income from the third कितना है? 8z upon 100 plus 70, ₹70 more than the third investment. Okay, I repeat, if the total annual income from the first 2 investments is ₹70 more than the third investment. Clear हो गया? यानी 6x upon 100 फिक्स डिपॉजिट, 7y upon 100 बोलो शेयर मार्केट इज इक्वल टू 7 मोर दैन द थर्ड इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड। सचिन तेंदुलकर सही है।
7z अपॉन 8 से ज़्यादा, थर्ड कंडीशन। अब फिर से 100 को इधर लेके गया तो 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 7000, 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू 7000, थर्ड कंडीशन। Therefore, the system of linear equations is x plus y plus z is equal to 5000, 6x plus 7y plus 8z is equal to 35,000, and 6x plus 7y minus 8z is equal to 7,000. Clear? These equations can be written in the matrix form. Capital X is equal to B as 1 1 1 पहली रो, 6 7 8 second row, 6 7 minus 8 third row, 1 1 1 6 7 8 6 7 minus 8। x यानी ये मैट्रिक्स x y z, राइट साइड में b यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स 5000 35,000 7000 हो गया। अब आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इंटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब रूल से हट गए तो भी चलता है। नॉर्मली अपन इन्वर्स में क्या करते हैं, यहाँ 1 लाते हैं और इसी का यूज़ करके यहाँ 0 लाते हैं, तो अपन लिखते थे R2 माइनस 6R1 एंड R3 माइनस 6R1। बट यहाँ 0 इससे आ सकता है तो रूल चेंज मत करो, पहले R3 माइनस R2 कर डालो, यानी कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा कम होता है क्योंकि फिगर्स हेवी है, बड़ी फिगर्स। क्लियर हो गया? तो पहले मैंने क्या किया, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, रूल से हट गया है, ध्यान दो। उसके दो फायदे कि यहाँ भी 0 डायरेक्ट मेरे को मिल रहा है, 7 माइनस 6 करूँगा तो 1 आएगा, दो फायदे हो गए। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, पहली रो 1 1 1, सेकंड रो 6 7 8, नो चेंज। R3 माइनस R2 यहाँ से आप रखेंगे R3 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, सेम चेंज राइट साइड में। 7000 माइनस 35,000 माइनस 28,000 हो गया। देखो 2 0 एट ए टाइम आ गए, फायदा हो गया। R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 किया, हालांकि रूल से हट गया है। अब कहाँ 0 चाहिए, 6 की जगह पे, 6 की जगह पे 0 आया तो दिस बिकम्स एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मेथड ऑफ रिडक्शन। ना R2 चेंजेस टू R2 माइनस 6R1, तो 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2, बाकी नो चेंज, एक्स वाई जेड नो चेंज। राइट साइड में सेम चेंजेस। R2 माइनस 6R1, 35,000 माइनस 6 इंटू 5,000, 35,000 माइनस 30,000, आंसर इज ओनली 5,000। This is minus 28,000 as it is. Now this is upper triangular matrix, so we multiply these two matrices, x plus y plus z, 0x plus y plus 2z, 0x plus 0y minus 16z is equal to say, by the equality of matrices, x plus y plus z is equal to 5,000, y plus 2z is equal to 5,000, minus 16z is equal to minus 28,000. Now equation 3 से मैंने z जो आया माइनस 28,000 डिवाइडेड बाय माइनस 16, यानी 28,000 और ये 16 डिवीजन चालू किया। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 नहीं आएगा इसलिए 1 आएगा, 16 1 जा 16। देन 28 माइनस 16 is 12, ये 0 यहाँ लगाया, 120 हो गया। ओके, 16 7 जा 112, क्योंकि 100 85 100 सकम 96, 100 साठी 12 वर्षे 112 आ गया। यहाँ 120 माइनस 112 is 8, ये 0 यहाँ लगाया। 16 5 जा 80 कंप्लीट हो गया 0 0, इसलिए ये बचा हुआ 0 था ये वाला, ये यहाँ पे डाल दिया मैंने। तो आंसर इज 1750, कंफर्म। क्रॉस चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई 1750 बाय 16, यू विल गेट एग्जैक्टली 28,000। अब z आ गया 1750, आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ z, यहाँ पे आओगे 1750 in equation 2, we get y plus
2 into 1750 is equal to 5000. Y is equal to 5000 minus 3500, यानी y is equal to 1500. यानी उसने शेयर मार्केट में 1500 इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में 1750 इन्वेस्ट किया. सही है, हो गया राइट. वी गॉट y 1500, z 1750. अब यू पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. x is x, y is 1500, 1750 is equal to 5000. So x is equal to 5000 minus 3250, बचा कौन 1750. वैसे भी अपने को पता है 1750 इंटू 1750 3500 प्लस 1500 3500 5000. फाइनल आंसर इज 5000. इसमें से इन्वेस्ट. सो एक्स इज इक्वल टू 1750. फिक्स डिपॉजिट SBI कितने डाले उसने 1750. शेयर मार्केट में कितने पुट किए उसने 1500. रिस्की शेयर मार्केट डावाडोल होता है. म्यूचुअल फंड सही है. सचिन तेंदुलकर कितने पुट किए z is equal to 1750. Hence the amounts of the investments are rupees. तीनों को ऐड करो 1750 इंटू प्लस 1750 3500 प्लस 1500 यानी 5000. आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट.